2026 AIRC Initiative Golden Charcha and Enriching Webinar Series by AIRC of ICI on every Monday, Wednesday and Friday. Today is the 58th sessions. Today's topic is GST on GTA and speaker is Aishwarya Agarwal. Aishwarya Agarwal was born on 4th February 1990 to Sri Rajendra Prasad Agrawal and Srimati Renu Agrawal. He is qualified as a chartered accountant, company secretary, and is a law graduate. He is partner in Aishwarya and Company and knowledge partner in RPA Professional LLP. He is having more than 10 years of experience in the field of indirect tax, GST, service tax, central excise, and VAT. He has worked with various type of industries like iron and steel, FMCG, cement, real estate, automobile, education, healthcare, engineering, etc. As a consultant, Aishwarya has wide range of experience in providing consultancy, corporate training, drafting of show cause replies and appeal, and also appearing before tax authority and tribunal. He has an experience of working with leading indirect tax consultancy and advocate in India. Aishwarya Agrawal is a past chairman of Raulkela branch of AIRC-ICI in the year of 2019-20. He is selected faculty of Indirect Tax Committee ICI for GST and has been appointed as a special invitee of the GST and Indirect Tax Committee of ICI for the year 2025-26. He has been appointed as a knowledge partner of TeleSolution for GST. Aishwarya regularly conduct workshop and training session for official of GST Department and National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics. Aishwarya has Aishwarya has his own YouTube channel by the name CA Aishwarya Agrawal, where he shares his knowledge with the public at large and is a regular contributor to various online publications like TaxGuru and TMI. He was recognized as a influential by the Eastern India Regional Council of ICI. He is a speaker in various professional study circles, seminar and conference organized by ICI and Trade Chamber. He has also been appointed as a legal advisor in Raulkela Chamber of Commerce and Industry. Today's topic is GTA. GTA's highlight what is a GTA, what is reverse charges, registration, RCM, FCM, and e-invoicing for GTA. So I request Aishwarya Agrawalji to take today's session. Over to Aishwarya ji. Thank you so much, Impuji, for your warm introduction. And first of all, I'd like to thank EIRC with our chairman Vishnu Bhaiya and his team for giving me this wonderful opportunity, inviting me here before you all to share my knowledge on this very burning topic, a very confusing topic, and a topic which involves lots and lots of litigation. That is Goods Transport Agency. Friends, ये जो टॉपिक है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए जैसा हम बोलते हैं, इस कॉमनली वी नो कि जीटीए मतलब एक रिवर्स चार्ज से रिलेटेड इशू है। एंड ये जो सेक्टर है ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है विच इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टर्स एंड ट्रक ओनर्स। देर आर लिटिल बिट ऑफ बिग ट्रांसपोर्टर्स, कुछ कुछ बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज वे। अदरवाइज जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या तो फिर उनके पास ट्रक्स ही नहीं है, एक जीटीए लाइसेंस होता है, या फिर वो ट्रक ओनर्स होते हैं उनके पास एक ट्रक होता है, 10 ट्रक होता है, 20 ट्रक होता है। एंड सब उस तरह से काम करते हैं जैसा उनका प्रिंसिपल उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम करते हैं। जीएसटी लगाने बोलता है तो जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी नहीं लगाने बोलता है तो नहीं लगाते हैं, रिवर्स चार्ज बोलता है रिवर्स चार्ज का बिल देता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। एंड अल्टीमेटली जो उनका जो प्रिंसिपल है वो उनको जो पेमेंट करता है, कभी वो टीडीएस काटते हैं कभी नहीं काटते हैं, 26 इसमें रिफ्लेक्ट करता है, और उसके कारण से डिपार्टमेंट से बहुत सारे नोटिसेस इनवाइट होते हैं। ये जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। ये आज तो हम 2026 में, आज हम जीएसटी रेजिम में आज हम बैठ के हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, बट इट दिस टॉपिक गोज बैक टू द सर्विस टैक्स रेजिम इन 2024,
when this concept was first introduced इन रिलेशन टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेक्टर, जहां पर सर्विस टैक्स में 2004 में जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1994, तो वहां पर एक एक पर्टिकुलर सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था एंड वो लिस्ट धीरे धीरे ऐड होते जा रहा था। एंड उस लिस्ट में 2004 में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर पहली बार सर्विस टैक्स लाया गया। एंड उस समय जो वो सर्विस टैक्स लगा, उसके बाद वो आज 2026 में है, जीएसटी में भी वो सारा कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जीएसटी में अब कुछ नए कंसेप्ट आ गए हैं, क्योंकि सर्विस टैक्स में हमेशा से खाली रिवर्स चार्ज था इस सेक्टर के ऊपर। जीएसटी जब आया तो जीएसटी में तब भी रिवर्स चार्ज था, व्हेन द जीएसटी केम इन ऑन 1st ऑफ जुलाई 2017। इवन देन देयर वाज ओनली सिंगल कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज, बट ओवर द टाइम 2019 से इसमें एक नया कंसेप्ट लाया गया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अब उसका एक नए सारे कंफ्यूजन्स हैं, क्या डिक्लेरेशंस हमको फाइल करना है, डिक्लेरेशंस फाइल नहीं करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद रिसेंटली इन द ईयर 2025, जो अभी रिसेंटली जीएसटी 2.0 आया, तो इसमें हमारे रेट्स भी चेंज हुए हैं। तो ऐसे ओवर द पीरियड बहुत सारे इसमें चेंजेस। तो आज आज के इस प्रेजेंटेशन में आई वुड ट्राई कि मैं आपको ये सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकूं एंड अपना ये नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं कि एक्चुअली ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता क्या है, एंड इस सेक्टर के ऊपर कब रिवर्स चार्ज लगता है, कब एग्जेम्पशंस होता है, कब फॉरवर्ड चार्ज लगता है, और कब ये टैक्स का क्या रेट लगता है। सो टू स्टार्ट विथ, कि अगर हम आज इसमें लीगल प्रोविजंस के बारे में रिफर करते हैं, तो सबसे पहले व्हाट इज ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक्चुअली, अगर आप डेफिनेशंस में जाएंगे इस जीएसटी लॉ का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 में अगर आप जाते हैं, वेदर ऑल द डेफिनेशंस गिवन, तो वहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज नॉट डिफाइंड। अब उसका डिफिनेशन को हमको बोरो करना पड़ता है फ्रॉम दिस रेट नोटिफिकेशन, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, जहां पर सर्विसेज रिलेटेड रेट्स डिफाइंड है। उसके अंदर में वहां पर एक्सप्लेनेशन में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिफाइंड है, विच सेज that a goods transport agency means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include e-commerce operator, जो नीचे में एक्सक्लूडेड है वहां पर। तो ये डेफिनेशन बहुत केयरफुली देखिएगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस एनी पर्सन प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड issues a consignment note by whatever name called। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन तो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एंड उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज इश्यूएंस ऑफ ए कंसाइनमेंट नोट। ये डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उसका ये इंपॉर्टेंस समझिए इस डिफिनेशन से, कि अगर कंसाइनमेंट नोट है तो यू आर ए जीटीए, एंड इफ देयर इज नो कंसाइनमेंट नोट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जीटीए। उसके बिना आप क्या हैं, यू आर ए ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, दैट्स इट। ऐसा नहीं है हर ट्रांसपोर्टर जीटी होता है। अब आप पूछेंगे उसका क्या रेलेवेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू अस, बिकॉज वो जीटी हो या ना हो, क्या उससे जीएसटी लॉ में कोई क्या अलग प्रोविजंस है, तो यस, बहुत फर्क पड़ता है। आप कंसाइनमेंट नोट के साथ दे रहे हैं तो आप एक जीटीए हैं, जहां पर आपके लिए अलग प्रोविजंस हैं। एंड अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं विदाउट कंसाइनमेंट नोट, यू आर नॉट ए जीटी, एंड आपके लिए अलग प्रोविजंस हैं। बोथ आर नॉट द सेम थिंग। ये एक बहुत एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट चला आ रहा है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अपने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है आप उसके ऊपर रिवर्स चार्ज दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है तो रिवर्स चार्ज। ऐसा नहीं है। क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसका डिफरेंस होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। रिसेंटली अब ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, क्योंकि हमने तो ये बात किया कि ठीक है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूज अ कंसाइनमेंट नोट। बट ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, ये कंसाइनमेंट नोट जीएसटी लॉ के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है। तो अब रिसेंटली 2025 में फ्लिपकार्ट इंडिया ने एक एडवांस रूलिंग लिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि एनी पर्सन हु ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड कैन नॉट बी अ जीटीए। ये एडवांस रूलिंग में कहा गया है, द पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड एंड इश्यूज ए कंसाइनमेंट नोट कैन बी रिगार्डेड एज जीटीए।
ये है सिग्निफिकेंस एक कंसाइनमेंट नोट का। If a consignment note is issued, it indicates that the lien of the goods has been transferred to the transporter and transporter becomes responsible for the goods till the safe delivery of goods to the consignee. तो ये होता है कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिससे वो ट्रांसपोर्टर उस गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आज मेरे ट्रक, मेरे कन्वेंस में अगर आपने 10 टन लोड किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस 10 टन को डिलीवर करूंगा आपके कंसाइनी के पास। आई हैव टेकन द लियन ऑफ दिस गुड्स। ये होता है उस कंसाइनमेंट नोट का सिग्निफिकेंस। फिर क्या डेफिनेशन डिफाइंड है ये कंसाइनमेंट नोट, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कंसाइनमेंट नोट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द जीएसटी एक्ट और इन एनी नोटिफिकेशन। Since the concept of GTA under the GST regime is the same as it has been in erstwhile service tax regime, we can refer to Rule 4B of the Service Tax Rule. तो उस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी कहा कंसाइनमेंट नोट है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर। तो उसका डेफिनेशन को हम बोरो करते हैं, हम रिफर करते हैं सर्विस टैक्स रूल्स, दैट इज रूल 4B। एंड व्हाट डज इट से? एनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, any goods transport agency which provides service in relation to transport of goods by road in a goods carriage shall issue a consignment note to the recipient। जहां पर consignment note means a document issued by a goods transport agency against the receipt of goods for the purpose of transport of goods by road in a goods carriage which is serially numbered and contains the name of consignor and consignee, registration number of the goods carriage in which the goods are transported, details of the goods transported, details of the place of origin and destination, and person liable for paying of tax whether consignor, consignee or the GTA। ये सारे डिटेल्स रहने चाहिए। मतलब कंसाइनमेंट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए और इसमें ये सारे डिटेल्स रहने चाहिए। मतलब कंसाइनर का डिटेल, कंसाइनी का डिटेल, उनका एड्रेस, गुड्स का डिटेल, क्या क्वांटिटी है, क्या उसमें आइटम्स है, आपका कन्वेंस का मतलब बेसिकली ट्रक का व्हीकल का नंबर रहना चाहिए, एंड हु इज द पर्सन लाइबल फॉर पेइंग ऑफ सर्विस टैक्स। अगर उस समय सर्विस टैक्स हो तो आज जीएसटी है। तो अगर आप देखेंगे कि कंसाइनमेंट नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारे डिटेल्स रहने चाहिए। अब इस कंसाइनमेंट नोट के लिए हमने जब यहां पर रिफर किया रूल 54 सब रूल 3 जो टैक्स इनवॉइस जहां पर डिफाइंड है अंडर द जीएसटी रूल्स, तो वहां पर टैक्स इनवॉइस अगर स्पेसिफिक रूल 54 सब रूल 3 है फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रूल 54 सब रूल 3 है जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का टैक्स इनवॉइस के बारे में कहा गया है, तो आप उसको देखेंगे दिस आर द सेम लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कि एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो टैक्स इनवॉइस इशू करना है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आप देखेंगे ये टैक्स इनवॉइस जो है दिस रिक्वायरमेंट्स आर सेम एज ए कंसाइनमेंट नोट। इसका मतलब जो टैक्स इनवॉइस इशूड बाय जीटीए है वो एक तरह से कंसाइनमेंट नोट ही है। क्या बोलता है ये रूल 54 सब रूल 3 कि वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज द जीटीए सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, the said supplier shall issue tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called, containing gross weight of the consignment, name of the consignor consignee, registration number of goods carriage, details of goods transported, details of place of origin and destination, GST number of the person liable for paying tax, whether consignor, consignee or GTA, and also containing other information as mentioned in Rule 46। Rule 46 क्या है? टैक्स इनवॉइस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि सप्लायर का जीएसटी नंबर, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ, डेट, जीएसटी का डिटेल, ये सारी चीजें। तो बेसिकली यहाँ पर जो जीटीए का रिलेटेड टैक्स इनवॉइस का रूल है रूल 54 सब रूल 3, दैट मेक्स इट क्लियर कि ये कंसाइनमेंट नोट जो आप इशू कर रहे हैं वो कंसाइनमेंट नोट ही बेसिकली टैक्स इनवॉइस है और अ जीटीए एज पर द जीएसटी लॉ। तो ये तो समझ आ गया ना कि अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो आपको ये डॉक्यूमेंट इशू करना मैंडेटरी है। ये कुछ सैंपल हैं कि अगर एक कंसाइनमेंट नोट बनता है तो किस तरह से कंसाइनमेंट नोट दिखता है। आप एक कुछ मतलब ये कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से एक ट्रांसपोर्टर है आप देखेंगे उसके सारे डिटेल कंसाइनर, कंसाइनी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन, गुड्स का डिटेल, ट्रक का डिटेल, ये सारे चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स रहता है। फिर वहां पर रहता है कि आपका
कौन पर्सन जो भी रहेगा लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। आप ऊपर में देखेंगे ब्लैक में लिखा हुआ है कंसाइनर और कंसाइनी, जिसमें भी वो टिक करते हैं लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। कौन लायबल होता है एक्चुअली एज पर लॉ, हम आगे जानेंगे। ये एक अनदर एक और एग्जाम्पल है जहां पर किस तरह से डिटेल्स रहता है कंसाइनमेंट नोट में। इस तरह से बेसिकली ये एक फॉर्मेट है जहां पर ये बेसिक डिटेल्स आपको वहां पे डालना जरूरी होता है। अब क्या इसमें ई इनवॉइसिंग जरूरी है? क्या आपका जीटीए का जो इनवॉइस होता है, अगर उनका टैक्सेबल टर्नओवर, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर जो रिक्वायर्ड टर्नओवर है दैट इज 5 करोड़, अगर वो 5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है, तो क्या इसी टैक्स इनवॉइस जो या जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं क्या उसमें ई इनवॉइसिंग है? तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो फर्स्ट आया था जिसके थ्रू ये ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल किया गया है, तो वहां पर एक एक्सेप्शन है जो बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड, और दोज रिफर्स टू इन सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A ऑफ रूल 54 ऑफ द सेट रूल whose turnover aggregate turnover in the preceding year so and so। तो यहाँ पर जो सब रूल 54, सब रूल 4, सब रूल 3 है जहां हमने पहले भी देखा था, ये टैक्स इनवॉइस रिलेटेड, ये बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए ही है। तो ये जो पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ये यहाँ पे ई इनवॉइसिंग से एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब अगर ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो अगर फॉरवर्ड चार्ज में भी अगर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, वहां पर वो 12% या 18% अगर जीएसटी लगाते आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। या अगर वो रिवर्स चार्ज का भी इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो वहां पर भी उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। बट ये खाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए, सारे रिवर्स चार्ज वाले सर्विसेज के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं होता, ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट नहीं होता है। अब ये रिटर्न्स, कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एक्चुअली रिटर्न्स कैसे फाइल करना होता है। तो ये फाइल करने के लिए आप देखेंगे जब आप GSTR 1 फाइलिंग करने जाते हैं, तो GSTR 1 में आप एक अगर रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो है वो यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लाइंट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रांसपोर्टर से जो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, उनका अगर आप टू बी जाके देखेंगे जहां पर वो रिवर्स चार्ज वाली जो टैब रहती है, तो वहां पर आप देखेंगे कई सारे इनवॉइसेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहां पर हो सकता है उस ट्रांसपोर्टर से आपने सर्विस रिसीव ही नहीं किया है। या कुछ इनवॉइसेज देख रहे हैं आप जहां पर इनवॉइसेज का जो डिटेल है वो डिटेल आपका सपोज साल आपने जो मंथ में उससे सर्विसेज रिसीव किया है उससे कुछ अलग ही वैल्यू वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। या हो सकता है आप रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं लेकिन वो इनवॉइस का डिटेल रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न फाइलिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एक नॉर्मल परसेप्शन चलता है जो कई सारे अगर अकाउंटेंट्स या कोई उनके रिटर्न फाइल करते हैं उनको लगता है कि ये तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कोई जीएसटी तो है नहीं, इसमें तो जीएसटी लगता ही नहीं है। तो वो अपना GSTR 1 में जाते हैं, नील या एग्जाम के अंदर में टोटल टर्नओवर डिस्क्लोज कर देते हैं। या यहाँ पर भी अगर वो इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो उस इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे डालते हैं और इसके अंदर जब रेट वाइज का डिटेल डालते हैं तो 0% में अपना वो डिटेल रिफ्लेक्ट कर देगा। जस्ट ए मिनट। हेलो। हाँ पापा आपको थोड़ा देर रुको रखो, सॉरी। तो यहां पर जब वो रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं तो वो रिटर्न फाइलिंग में वो नील या 0% में डाल देते हैं, या कई बार तो इनवॉइस वाइज डिटेल ही नहीं डालते, वो टोटल का टर्नओवर एग्जेम्प्ट या नील के अंदर डाल देते हैं। अब ऐसा भी होता है कि आप जैसे जानते हैं कि कंसाइनमेंट नोट में हमारे को मेंशन करना होता है हु इज द पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, कंसाइनर या कंसाइनी। तो उनको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है, वो कंसाइनर या कंसाइनी किसी के भी नाम से वो अपना वो बिल का डिटेल रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो आपने उनसे सर्विस नहीं भी रिसीव किया, हो सकता है आप सेलर हैं, आपके बायर ने ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया था, उन्होंने उसको इनवॉइस रेज किया है, लेकिन वो कंसाइनर का डिटेल देख के हो सकता है वो आपके नाम से वो जीएसटी रिटर्न में फाइल कर दे रहे हैं। इस तरह के कई सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो ये बहुत केयरफुल होना जरूरी है, या ये चीज का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक जो रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं उनको अपना बिल वाइज डिटेल रिफ्लेक्ट करना है अपने GSTR 1 में। एंड जब वो अपना डिटेल फाइलिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो पर्टिकुलर इनवॉइस का डिटेल भर रहे हैं, तो इधर पे एक बॉक्स आता है जहां पर लिखा है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि इधर पे जहां आपको रिवर्स, यहाँ पे आपको टिक करना होता है कि सप्लाई अट्रैक्ट्स रिवर्स चार्ज, इसको टिक करिए।
फिर अपना रिस्पेक्टिव डिटेल्स भरिए, और भरने के बाद जब यहाँ पे रेट वाइज का डिटेल आता है तो उसमें 5% का जो डिटेल भरने का जगह है वहाँ 5% में आप अपना इनवॉइस का डिटेल भरिए। तो ऑटोमेटिक आपके रिसिपिएंट के वहां पे जीएसटी टू बी मूव एज ए रिवर्स चार्ज इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगा विद द टैक्सेबल वैल्यू, जहाँ पे वो रिवर्स चार्ज बोल के शो करेगा, एंड वहाँ पे 5% जीएसटी पेबल में ही वो शो करेगा। रिवर्स चार्ज में दिस इज द ओनली रेट एप्लीकेबल, दैट इज 5%। वहां पर कोई अलग अलग रेट एप्लीकेबल नहीं होता है कि वो 12% या 18% में भी रिवर्स चार्ज बिलिंग कर सकता है, ऐसा नहीं। तो ये चीज के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड एज अ रिसिपिएंट, अगर आपके कोई क्लाइंट के जीएसटी टू बी में अगर कोई ट्रांसपोर्टर के एक्स्ट्रा कोई इन्वॉइसेज ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन विद टैक्स पेयर में जाके किसी भी तरह आप उनको इन्फॉर्म करिए कि आपके इतने सारे इन्वॉइसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है। बिकॉज इसके कारण डिपार्टमेंट्स के भी नोटिसेस आते हैं कि आपके वहां पर रिवर्स चार्ज में इतनी सारी लाइबिलिटी दिख रही है लेकिन आप तो उतना पेमेंट कर ही नहीं रहे। एंड उस समय अगर आपके पास उस ट्रांसपोर्टर्स के साथ अगर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है तो वो आपके लिए क्लैरिफाई करना आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। अब जो कंसेप्ट है इसके ऊपर, रिवर्स चार्ज कैसा है, जैसे सब जानते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जिसके ऊपर लेवी का सेक्शन है सेक्शन 9, जहां पर सब सेक्शन 3 के अंदर में कहा गया है कि द गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर जो उसका रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ऑफ दैट गुड्स और सर्विस शैल बी लायबल ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, एंड अकॉर्डिंगली सारे जो प्रोविजंस है उसके ऊपर ही अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होगा। एंड इसी 9 सबसेक्शन 3 के अंदर में नोटिफिकेशन किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, जिसमें क्लॉज है विच सेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ये सर्विस आपके रिवर्स चार्ज के अंदर कवर किया गया है। अब क्या ये सारे सर्विसेज कवर्ड है प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो ऐसा नहीं है। वहां पर 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस डिफाइंड है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो ही रिवर्स चार्ज अप्लाई करता है। अगर उस 7 के अलावा अगर आप कोई 8th पर्सन है तो वहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या है वो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन, कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये 7 कैटेगरी के पर्सन हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है अगर वो कोई जीटीए से सर्विस रिसीव कर रहा है। अब कोई अगर 8th कैटेगरी पर्सन है, तो अगर ऐसा कोई है तो कोई बता सकता है पार्टिसिपेंट से कि कौन है, इससे पता भी तो चले कि पार्टिसिपेंट्स ये कौन ऐसा 8th कैटेगरी है जो इस लिस्ट के अंदर में कवर्ड नहीं है। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल तो सर कोई भी हो सकता है यहाँ पर। इंडिविजुअल मतलब कौन इंडिविजुअल, अब यहाँ पर जैसे पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, यस प्रदीप बागड़ी जी ने कहा कोई इंडिविजुअल पर्सन विदाउट जीएसटी, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड उसका कोई फैक्ट्री नहीं है उस प्रोप्राइटरशिप फर्म में, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है लेकिन उसमें अगर फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री तो देखिए आप सोच के बड़ा यूनिट मत सोचिए, कोई छोटा सा भी यूनिट हो सकता है वो भी फैक्ट्री हो सकता है, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट भी हो सकता है। अगर वो अगर है विच इज गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट एंड वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अनरजिस्टर्ड है जीएसटी से, शायद वो कोई एग्जेम्प्टेड आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा हो, तो भी उसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई कर जाएगा। तो इसीलिए वहां पर आपको देखना जरूरी है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है शायद वो अनरजिस्टर्ड है एंड वो ट्रेडिंग का बिजनेस या किसी में इन्वॉल्व है, तो उस केस पे यहाँ पर वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि 7 कैटेगरीज में अगर आप कवर हो रहे हैं तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई कर जाएगा। एंड कौन लाइबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, द पर्सन हु पेज और इज लाइबल टू पे फ्रेट टू द ट्रांसपोर्ट to for the transportation of goods by road in goods carriages located in taxable territory shall be treated as a person who received the service for the purpose of this notification। क्यों है ये, क्योंकि दिस विल डिसाइड कि कौन पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है, ट्रांसपोर्टर एक कंसाइनर से गुड्स लेता है और एक कंसाइनी तक पहुंचाता है, तो यहाँ पर जो पर्सन फ्रेट पेमेंट करने के लिए लायबल है ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज
एंड उसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 अप्लाई करता है। ये इन्होंने बहुत अच्छा चीज किया, क्योंकि सर्विस टैक्स में लिखा रहता था कंसाइनर और कंसाइनी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ फ्रेट। अब कंसाइनर और कंसाइनी में जरूरी नहीं है कि वही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस या वही ट्रांसपोर्टर उन्हीं को फ्रेट पेमेंट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं बीच में ट्रेडर हूँ, मैं पर ट्रांसपोर्टर अपॉइंट कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट्री से गुड्स लेके दूसरे फैक्ट्री तक पहुंचा रहा हूँ, तो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों है, लेकिन कोई उनको फ्रेट पेमेंट नहीं कर रहा है, फ्रेट मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता था सर्विस टैक्स के टाइम में। जो इन्होंने यहाँ पर जीएसटी में ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने लिखा जो भी पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ फ्रेट है, और पेमेंट फॉर फ्रेट के लिए कौन होता है, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन इनवॉइस रेज कर रहा है। ट्रांसपोर्टर जिसको इनवॉइस रेज कर रहा है, ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब रेट्स की अगर बात करें, जैसा हमने कहा कि जीटीए के ऊपर तो एक ही रेट अप्लाई करता था पहले, दैट इज 5% अंडर रिवर्स चार्ज। बट अब जीटीए के ऊपर एक नया कंसेप्ट आ गया है, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। तो अब एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी लगा सकते हैं, और फॉरवर्ड चार्ज में भी उनके पास दो रेट्स के ऑप्शन है, एक है 5%, एक है 18%। ये जो 18% है, ये जीएसटी 2.0 जब आया 22 22 अक्टूबर, जब भी था वो 22 का, आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो वो जो जीएसटी 2.0 आया, उस दिन से उनका रेट जो 12% था पहले, वो 12% से 18% हो गया। उसके पहले वो 12% था। अब यहाँ पर जो रेट है, दैट कम्स विद अ कंडीशन, कि अगर आपका 5% का रेट है, तो 5% का रेट कम्स विद अ कंडीशन दैट आपको कोई भी इनपुट टैक्स रेट अलाउ नहीं होगा। एंड जो 18% है, दैट कम्स कि आपके पास, दैट कम्स विदाउट कंडीशन, क्योंकि इसमें आपका कोई इनपुट टैक्स रेट ब्लॉक नहीं होगा, आपको इनपुट टैक्स रेट क्लेम का नया अलाउड। एक ट्रांसपोर्टर के लिए क्या इनपुट होता है, वो है उनका ट्रक। कि आज जो वो ट्रक्स परचेज कर रहे हैं, वो ट्रक्स के ऊपर हैवी जीएसटी पेमेंट करके ला रहे हैं, प्लस उस ट्रक्स के ऊपर इंश्योरेंस होता है, उसका रिपेयर्स होते हैं, उसके सर्विसिंग होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टाइम टू टाइम जो भी एक्सपेंसेस है, वो सारे का इनपुट टैक्स रेट अलाउड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं एट 18%। क्या फॉर जी एक जीटीए दोनों रेट चार्ज कर सकता है, दैट इज 5% एंड 18%? तो यस, एक जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में दोनों रेट चार्ज कर सकता है, 5% एंड 18%। बट अगर वो 5% एंड 18% दोनों चार्ज कर रहे हैं, तो जो उनका इनपुट टैक्स रेट है वो भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट टू द टर्नओवर जो 18% वाला है। 5% का प्रोपोर्शनेट टर्नओवर के रिलेटेड आपको इनपुट टैक्स रेट रिवर्स करना पड़ेगा एज पर रूल 42 और रूल 43। एंड जो ये 5% रिवर्स चार्ज वाला जो रेट है, ये रिवर्स चार्ज वाला रेट के ऊपर पे आपको कोई 18% का नियम नहीं है, यहाँ पर एक ही रेट है, दैट इज 5% रिवर्स चार्ज में, एंड इसमें आपको कोई इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है। अब कोई बता सकता है कि ठीक है, हमको तो इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है एज ए ट्रांसपोर्टर, बट जो मेरा रिसिपिएंट है, वो जो उस 5% को पेमेंट करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, या अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में इनवॉइस रेज कर रहा हूँ, वो जो वो मेरे को 5% पेमेंट करेंगे, तो क्या मेरा रिसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर सकता है? एनीवन? वेदर माई रिसिपिएंट कैन क्लेम इन, अगर मेरा रिसिपिएंट है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इट इज अ फैक्ट्री जहां पर वो टैक्सेबल आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड मेरे से वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव कर रहे हैं, जिसमें वो रिवर्स चार्ज में 5% पेमेंट कर रहे हैं, या हो सकता है मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में 5% पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको इनपुट टैक्स रेट क्लेम करना अलाउड है? कोई बताना चाहेगा इसके लिए? नो वन? अगेन प्रदीप आगरे जी, यहाँ लगता है एक ही पार्टिसिपेंट हैं जो इस पे सुन रहे हैं। इनका कहना है यस आई थिंक, मतलब कंफ्यूजन है इस पे। एनीवन एल्स? तो यहाँ पर रिसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स रेट का कोई कंडीशन नहीं है, देर इज नो बार फॉर देम। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अगर उनके लिए वो बिजनेस में वो एक बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज है, सेक्शन 16 को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए इनपुट टैक्स रेट में कोई बार नहीं है, वो इनपुट टैक्स रेट उसका क्लेम कर सकते हैं। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फॉरवर्ड चार्ज जो जाते हैं, उस फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर पे आप जो जीएसटी लगाते हैं, वो जीएसटी क्या आप कभी भी रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है।
एक जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जाने के लिए एक जीटीए का सर्विस बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज में है, एंड उनको ऑप्शन दिया गया है फॉर फॉरवर्ड चार्ज, जिसके लिए उनको डिक्लेरेशन फाइल करना होगा इन एनेक्शर वी, एंड वो भी एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। मतलब अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 आ रहा है, तो अगर आप उसमें, आप करेंटली रिवर्स चार्ज में चल रहे हैं और अब आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले आपको अपना ऑनलाइन पोर्टल में जाके एनेक्शर वी फॉर्म फाइल करना होगा, जिसमें आप ऑप्ट करेंगे फॉर फॉरवर्ड चार्ज, एंड उसके बाद आपको फॉरवर्ड चार्ज में बाय डिफॉल्ट चलना पड़ेगा जब तक आप उससे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कभी कोई हमारे को कॉन्ट्रैक्टर बोला रिवर्स चार्ज, हम रिवर्स चार्ज कर लिए, कभी कोई फॉरवर्ड चार्ज बोला तो फॉरवर्ड चार्ज कर लिए, ऐसा अलाउड नहीं है। ये बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स इसके बारे में मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आपके लिए ध्यान देना जरूरी है कि क्या आपका भी क्लाइंट इस तरह का कोई मिस्टेक कर रहा है। हम्म ये एक फॉर्मेट है एनेक्शर वी फॉर्म का, जिसमें आप देखेंगे वो डिक्लेरेशन डालना पड़ता है, जहां पर वो डिक्लेयर करते हैं कि I or we authorized representative of this message ye have taken registration or have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA service in relation to transportation of goods by road supplied by during the financial year ये under forward charge in accordance with section 9(1), जो 9(3) में थे अब इससे आप आ जाते हैं 9(1) में। तो ये वो डिक्लेरेशन है, अगर ऐसा कोई भी है तो आप उसका इस अगले साल के लिए कम से कम इसको फाइल करके कंप्लाई करवाएं। अब एग्जेम्पशंस, तो यहाँ पर जीटीए में कई सारे एग्जेम्पशंस हैं, चैट बॉक्स में कोई लिखते हैं सपोज, प्रदीप जी का कहना है सपोज फॉरवर्ड चार्ज में है देन ही कैन ऑप्ट फॉर रिवर्स चार्ज इन मार्च 2026। ऑप्ट मतलब आपको बेसिकली ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, वहां पर एक फॉर्म है कि आई नो मोर वांट टू कंटिन्यू टू फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज, तो वो आप साल के बीच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आप रिवर्स चार्ज में जा सकते हैं। बट रिवर्स चार्ज से वापस फॉरवर्ड चार्ज जाने के लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही होगा, मिड में आप वापस फॉरवर्ड चार्ज में नहीं जा सकते। थैंक यू। अब एग्जेम्पशंस हैं। अब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 मेगा एग्जामेशन नोटिफिकेशन है, जहां पे सर्विसेज रिलेटेड कई सारे एग्जामेशन होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ गुड्स रिलेटेड एग्जामेशन है, कुछ सर्विसेज रिलेटेड एग्जामेशन है। गुड्स मतलब क्या, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक गुड्स। तो उस नोटिफिकेशन का क्लॉज नंबर 18 सेज सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए। यहां पर जो हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि क्या सिग्निफिकेंस है कंसाइनमेंट नोट का, तो ये है वो पर्टिकुलर क्लॉज जो उसका इंपैक्ट डालता है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट बाय जीटीए। जीटीए कौन होता है, कंसाइनमेंट नोट वाला। बिना कंसाइनमेंट नोट के लिए आप खाली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कर रहे हैं, तो क्या आप इस एग्जामेशन में कवर्ड है? यस। अगर आप कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर है प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड यू आर एक्सेप्ट द जीटीए, तो आप इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर कवर होता है, आपका सर्विस होता है एग्जेम्प्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 21, जहां पर आइटम रिलेटेड एग्जेम्पशन है कि एक जीटीए अगर ये पर्टिकुलर आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो वो स्पेसिफिक सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस प्रकार के आइटम्स हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस। यहाँ पे कोई ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का कंसेप्ट नहीं है, सीधा आइटम रिलेटेड है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, रिलीफ मटेरियल meant for victims of natural and man-made disasters, calamities, accidents and mishap, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ये पर्टिकुलर 6 टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं जिसके ऊपर में आइटम स्पेसिफिक एग्जामिशन दिया गया है। फिर क्लॉज 21A, जो हमने याद होगा, जो हमने कहा था कि रिवर्स चार्ज जो अप्लाई करता है वो नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 के अकॉर्डिंग 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन अगर रिसीव करते हैं तो एप्लीकेबल था। उसमें से एक कैटेगरी जो नहीं था वो था, क्या है, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब उसके बाद रिवर्स चार्ज नहीं था, तो क्या वो ट्रांसपोर्टर फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करते? तो उसके लिए क्लॉज 21A है जो सेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन
इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन फॉलोइंग रिसिपेंट, मतलब फॉलोइंग मतलब वही सारे कैटेगरी, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, वो सब। तो अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो आपके ऊपर ऐसे भी ये सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाता है। एंड बाकी कोई कैटेगरी है तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई कर जाता है। तो इसका मतलब एक ट्रांसपोर्टर के लिए किसी भी केस में जीएसटी लगाने का तो रीजन आता ही नहीं है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अनलेस एंड अनटिल फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट करना है। नेक्स्ट क्लॉज, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या होता है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? ट्रक, व्हीकल, कन्वेंस। कि अगर आप एक ट्रक ओनर हैं एंड आप अपना ट्रक को एक ट्रांसपोर्टर को हायर में देते हैं, जिससे वो यूज करके अपना आगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ही इज अ जीटीए, ही यूज कंसाइनमेंट नोट, एंड उस कंसाइनमेंट नोट में आपका ट्रक का नंबर लिखा है, तो इन दैट केस यू आर प्रोवाइडिंग दैट ट्रक ऑन हायर टू दैट जीटीए, एंड आपका सर्विस होता है एग्जेम्प्ट एज पर क्लॉज नंबर 22। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अब जैसा आप जान रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपोर्टर नॉर्मली पैन इंडिया वर्क करते हैं। आज आपको सपोज आप वेस्ट बंगाल में हैं या उड़ीसा में हैं, यहाँ से आपको कोई गुड्स भेजना है गुजरात, तो हम उड़ीसा में हैं, हमको गुजरात भेजना है। यहाँ पर एक झारखंड से ट्रक आया हुआ है, झारखंड का ट्रांसपोर्टर है, उसका कोई गुड्स डिलीवर करने आया हुआ था झारखंड। या मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, महाराष्ट्र से कोई ट्रक है, महाराष्ट्र का कोई ट्रांसपोर्टर है, वो गुड्स डिलीवर करने के लिए आया हुआ था उड़ीसा, एंड यहाँ पर हम उनको रिटर्न फेयर देते हैं कि हमको गुजरात भेजना है ये सामान, आप डिलीवर कर दो। तो वो ट्रांसपोर्टर में से उड़ीसा से सामान लेता है एंड गुजरात में मेरे रिसिपिएंट के पास जाके डिलीवर करता है, एंड मुझे वो बिल रेज करता है फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन। एंड वो ट्रांसपोर्टर कहाँ का है? ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। अब मेरे ऊपर अगर वो रिवर्स चार्ज अप्लाई करता है, तो मैं कौन उस पर जीएसटी जमा करेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का हुआ? क्या वो महाराष्ट्र का है, या क्या वो गुजरात है, या क्या वो उड़ीसा है? तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 सेज, जहां पर बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट अगर इंडिया में है, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन। मतलब अगर यहाँ पे रिसिपिएंट मैं हूँ, आई एम इन उड़ीसा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाए उड़ीसा। तो वो जो महाराष्ट्र का जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, अगर वो इनवॉइस रेज करेंगे, तो वो आईजीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा का ही इनवॉइस रेज करेंगे। फिर ए पर्सन अदर देन a registered person shall be the location at which such goods are handed over for the transportation। कहाँ से हैंड ओवर हुआ? ये गुड्स हैंड ओवर हुआ उड़ीसा में, तो यहाँ पर भी फिर प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा होगा, अगर यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर एक पर्सन इंडिया में है और एक पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3 to 13, ये हमारे से रिलेवेंट नहीं है, शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। रेसिपिएंट कौन है? अगर इसी केस में मैं उड़ीसा में हूँ एंड मेरे को कोई गुड सप्लाई करना है नेपाल, तो मैं यहाँ ट्रांसपोर्टर अपॉइंट करता हूँ जो जाके नेपाल में डिलीवर कर रहा है, एंड वो ट्रांसपोर्टर मुझे इनवॉइस रेज कर रहा है। तो क्या दिस विल बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? नो। क्यों? क्योंकि आई एम द पर्सन रिसीविंग दैट सर्विस, बिकॉज मुझे वो बिल रेज कर रहा है एंड आई एम रिसीविंग दैट सर्विस, तो माना जाएगा वो उड़ीसा में सप्लाई हुआ। बट अगर वो ट्रांसपोर्टर नेपाल वाले ने उसको अपॉइंट किया था एंड ये बिल रेज कर रहे हैं टू द पर्सन इन नेपाल, तो इन दैट केस द नेपाल पर्सन इज द पर्सन रिसीविंग सर्विस, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नेपाल, एंड अगर नेपाल चला गया वो सर्विस, तो क्या हो गया वो? दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि कहाँ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अब ट्रांसपोर्टर तो कई ठीक है, कुछ रजिस्टर्ड है, लेकिन मेजर अनरजिस्टर्ड होता है। मेरे बुक्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव किया है, मेरे बुक से मैंने एक्सपेंस बुक किया है। अब मेरे को अगर रिवर्स चार्ज पेमेंट करना है तो मैं कैसे पेमेंट करूँ? तो नॉर्मली अगर ट्रांसपोर्टर का एड्रेस पता नहीं रहता है, तो हम वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट कर देते हैं। एंड जहां पता रहता है, या अगर हम उतना डिटेल में जा पा रहे हैं, या इस पर 8 है पेमेंट 2B के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम आईजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं।
अब इसमें कई बार डिपार्टमेंट डिस्प्यूट करता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये तो आपका जो उसमें कंसाइनमेंट नोट है उसका एड्रेस दूसरे स्टेट का है, एंड आपने उसमें सी और एस पेमेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी। तो क्या वो गलत है? मैं तो बोलूंगा कि वो गलत नहीं। क्यों? व्हाट इज द इंटेंशन फॉर दैट? कि यहाँ पर अगर वो आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी इसीलिए था कि वो सर्विस का जो टैक्स है वो मूव करके हमारे स्टेट में आए। एंड अगर हम सीजीएसटी या जीएसटी पेमेंट करें तो तब भी तो वो हमारे स्टेट में ही है टैक्स। इनपुट टैक्स रेट तब भी हमको मिलता है, इनपुट टैक्स रेट आज भी हमको मिल रहा है। तो देर इज नो मिस्टेक इन आवर एंड। क्योंकि आज हम जब रिवर्स चार्ज सब रिसीव रिवर्स चार्ज में अगर हम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो आई एम द पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज। एंड मैं तो उड़ीसा में ही हूँ, तो मैं तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेमेंट करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जहां पर क्लैरिटी आना चाहिए। बट फिर भी उसका जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा, तब तक ये अननेसेसरी इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चलता रहेगा। ना रजिस्ट्रेशन, एक ट्रांसपोर्टर को क्या रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होता है? तो यहां पर सेक्शन 23 विच सेज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नेमली सेक्शन 23 नॉट लाइबल के लिए, एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होली exempt फॉर टैक्स। यहां पर एक एग्जेम्पशन है। फिर से क्या है? द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर टू रजिस्ट्रेशन, नेमली एनी पर्सन एक्सक्लूसिव एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होली exempt ऑफ टैक्स। अब इसमें कोई हमको बताना चाहेंगे कि एक जीटीए का सर्विस जो रिवर्स चार्ज में अगर कवर्ड है, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि दिस सर्विस इज नॉट लाइबल टू टैक्स और होली exempt फ्रॉम टैक्स? एनीवन? नो। प्रदीप जी ने फिर से कहा कि नहीं, हम उसको नहीं बोल सकते। एकदम सही, क्योंकि हमारा जो सर्विस है दैट इज टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बस उस पर रिवर्स चार्ज है। उसका जो जीएसटी का लेवी है उसको शिफ्ट किया गया है फ्रॉम सप्लायर टू रिसीवियर। तो क्या हम इसमें कवर होते हैं? नहीं। तो इसके लिए दूसरा नोटिफिकेशन आया है, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, जहां पर कहा गया है कि द पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, द टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस by the recipient of such goods or services or both under subsection 3 of section 9 of the said act as category of person exempted from obtaining registration under the aforesaid act। तो यहां पर भी आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, मतलब हमारा सर्विस तो टैक्सेबल है, बट लेकिन 100% रिवर्स चार्ज में, मेरे ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। इन दैट केस मेरे को इस नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां पर प्रिंसिपल कोई भी आपको टेंडर लेने के लिए, या कहीं पर ऐसा भी होता है कि वेंडर कोड खोलने के लिए आपको कंपलसरी वो रजिस्ट्रेशन लेने बोलते हैं, तो इस नोटिफिकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे तो पर रिवर्स चार्ज में बिल रेज करना है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन का कोई लाइबिलिटी नहीं है। ऐसे कई सारे सिचुएशन होते हैं जहां पर अल्टीमेटली वो मान जाते हैं कि हाँ, आपके लिए रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं है, उसके बिना भी आपको वेंडर कोड खुल सकता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि एक ट्रांसपोर्टर को कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 सेज, जहां पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए सेक्शन है, सेज एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गोडाउन एंड एवरी ट्रांसपोर्टर irrespective of whether he is a registered person or not shall maintain records of the consignor, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एवरी ट्रांसपोर्टर, ये भी नहीं बोला गया है कि रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, कोई भी ट्रांसपोर्टर है तो आपको अपना हर एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, जहां पर आपके कंसाइनर, कंसाइनी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और उससे रिलेटेड डिटेल रहना चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंगली रूल 58 सब रूल 3 भी है, जहां पर फिर से कहा गया है कि एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड shall maintain records of good transported, delivered and goods stored in transit by him along with the GST and registered consignor and consignee for each of his branches।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांसपोर्टर कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, उनके पास एक बिल्टी का थप्पी होता है जो उसको वो अपने स्टोर में जाके पटक देते हैं, खोजने से मिलेगा। और वो खाली अपना एक जो भी सॉफ्टवेयर में अगर डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो जहां पर उनके पास पेमेंट्स आ रहे हैं, इनवॉइस रेज हो रहा है, बस उसी का डिटेल। बट यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत मैंडेटरी है, इसमें कोई किसी प्रकार की एग्जामिशन नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आई होप ये कंटेंट, जो नॉलेज हमने शेयर किया, वो यूजफुल लगा हो। कोई अगर क्वेरीज है तो हम वो अभी डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हो पाया है इसमें बीच में। मुझे उम्मीद था कुछ क्वेरीज वगैरह भी आएंगे, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। बट मैं आप बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ सी ऐश्वर्या अग्रवाल, जहाँ पर इसी प्रकार के प्रैक्टिकल इश्यूज, कोई थ्योरेटिकल इश्यूज नहीं होता है, कोई पढ़ाई रिलेटेड मैटर्स नहीं है, जो प्रैक्टिकली डे टू डे इश्यूज हम फेस कर रहे हैं इन आवर प्रैक्टिस, और जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ट्रेड, उससे रिलेटेड इश्यूज को हम यहाँ पर डालते हैं, रेगुलर अपडेट्स को शेयर करते हैं। चैनल को विजिट करिए। अगर आपको उसके कंटेंट्स देख के यूजफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करिए। आई होप आपको ये मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो यूजफुल लगा हो। एंड ओवर टू यू चिंपू जी। दैट्स ऑल फॉर माय टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐश्वर्या जी, and requesting if anyone have any question, please ask to the speaker. खाली स्क्रीन में इन्होंने कुछ लिखा है, प्रदीप बागड़ी जी ने, आपने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, वो टाइम टू टाइम डिस्कस हो गया था उसका। हाँ, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन में लिख सकते हैं। नहीं, थैंक यू का मैसेज आ गया है। अच्छा, आपने लिखा है। तो ठीक है ऐश्वर्या जी, अपने आज का सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पे। जी जी। Thank you, Aishwarya for giving us such a detailed knowledge about GT, how it is registered, how it operate, इसका कंसिक्वेंस क्या है, इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इसका जीएसटी का एप्लीकेशन क्या होगा, इनपुट कैसे लेंगे अपने, इसको लेके बुक कीपिंग कैसे करेंगे, ये नहीं फॉलो करते तो उसके लिए क्या क्या अपने को कंसिक्वेंस आएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपने अपना अनमोल समय से समय निकाल के हमें इस चीज के बारे में जानकारी दी। एंड थैंक यू द पार्टिसिपेशन, जिन्होंने अभी तक पेशेंट हेयरिंग के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्य जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू चिंपू। नमस्कार जी। वी कंक्लूड आवर सेशन टुडे।